So as Manoj told, we can be in a relaxed way. I always tell my students in Prashanti, if you feel like lying down, you can lie down. It's like a story session. As a grandmother tells a story and children lie down, so we have to create that atmosphere for this wonderful knowledge of Patanjali to flow. So make yourself first of all physically comfortable. As we know, there are 4 paths of yoga. The very famous quotation of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, the great master. Now Manoj told a lot about us, but whatever happens in our life is because of divine grace. We all are instruments. And he told me about me, but I learned from my teacher, Dr. Nagendra. So like this, the knowledge continues. Swami Vivekananda's talks were recorded and published in book form, but one book which he sat down and wrote was commentary on Patanjali's Yoga Sutra. The name he gave Raja Yoga. Raja is master, Raja is king. So whether I am master of my own mind or I am slave of my mind. In Bangalore, like here also we go early morning for a walk. It's enjoyable. So one of my friends, he was going and his friend was coming from opposite direction with her dog. Where are you going early morning? I am taking my dog for a walk. By that time the dog was pulling like anything. So he is very full of humor. So you are taking your dog for a walk or dog is taking you for a walk. So if it is my mind, I should control on my mind. Night we switch off the light, but for many people difficult to switch off the thinking process. Many people can't sleep well. There's a magazine in US, Industrial Chemistry. It says the production of tranquilizers exceeds the production of all other drugs. So all the medicines on one side and sleeping pill industry is flourishing like anything. Very simple thing, going to bed peacefully in some places is difficult because we have lost the mastery over the mind. So Swami Vivekananda wrote this book, Raj Yoga. And the very first page is the famous quotation about all the 4 paths of yoga. I think all the yoga teachers will find this quotation very useful. It begins like this: each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature internal and external, by work or worship, by philosophy or psychic control, by one or more or all of these, and be free. So freedom is the ultimate goal, and be free. This is the whole of religion. Dogmas and doctrines, books and temples are but secondary detail. So the purpose of rituals, books, preachings, going to temple, worship should be eventually to make us free. Freedom is the ultimate goal. And freedom is already there. We are capable to be free. Each soul is, we are all divine. But many a time we don't know our own divinity because it's potential. So the purpose of life is to manifest this divinity within. Each one can choose one's own path depending upon my basic inclination. So some are more emotional type. So path of worship, refining the emotions, bhakti yoga. That can be my path. So by work or worship, some people believe only let me do my duty properly. Duty is beauty, work is worship. Well, that can be a path, karma yoga.
if I can work in a relaxed way, in a detached way. So by work or worship, by philosophy, Jnana Yoga, path of analysis, trying to analyze what actually I am. Many times we don't know what I am. We consider ourselves just this physical frame, at the most body mind complex. Our friend was asking, what is yoga, what is spirituality? What is spirituality? So these are the two philosophies, materialistic philosophy, spiritual philosophy. Material philosophy says matter is important. The entire creation has come from matter is the basis, matter based approach. So I can even produce life, bring RNA and DNA together, this is what they are assuming, and life emerges. Spirituality believes in consciousness approach. Consciousness is the basis of creation. It's very wonderful. Entire creation has come from the deep silence, from the ocean of consciousness, from the spirit. So if I am a spiritual person, then I am free, independent. I don't depend on matter for my happiness. Atmani eva atmanah tushta. I can be happy by myself. Looks very strange. I cannot be happy by myself. Yesterday we were discussing. I depend on somebody's love, somebody's petting. One day my husband does not talk with me nicely, my whole day is gone. My wife does not give a cup of coffee with a smiling face, my day is gone. So we are so much dependent on outside atmosphere, outside situations, outside people. That is materialistic approach. Matter makes me happy, or opposite, I am miserable because of somebody else outside. We always blame outside situations. There are three sources of misery: people, situations, and events. If I am not a spiritual person, so somebody makes me miserable. In office, my colleague, my boss, my subordinate. In school, my classmate. In home, my wife, my husband, my parents, my children make me miserable. They are the cause of my misery. So either situation, I got this particular job, because of that I am miserable. Anyone thinks other person is happy. My cousin, he recently retired as a teacher. So till he retired, he went on grumbling about his job of a teacher. He thought other people are very happy. Job of a person who is in railways is very, very good job. So I asked a person who was in railways, you must be very happy, because my cousin says people in railways, they get free passes. You know why is he liked? Because you get free passes. Then he told me, yes, we get free passes, but he gave a long list of his problems. So I asked, given choice, which job you would have taken? Job of a teacher is wonderful, you know. So distant hills look green. हर एक को दूसरे की थाली में घी नजर आता है. Every person thinks other person is happy. So I think this particular situation is the cause of my misery, or some event happened. Because of that, I am miserable. That is योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
आत्मीय स्वजन। जैसा कि अभी शिवमंगल भैया ने बताया, यह समग्र व्याख्यान माला ब्रह्मलीन मोहन भैया के स्मृति में सादर समर्पित है और आज उसका 38वां पुष्प है। कल हम लोगों ने दृष्टा और दृश्य, इनका एक दूसरे के साथ परस्पर क्या संबंध है, यह देखते हुए दृष्टा यह पूर्ण रूप से चेतन स्वरूप है, लेकिन अविद्या रूप क्लेश के कारण वह अनात्मभूत देह आदि में वह आत्मख्याति से यह मानता है कि वह सत्य है, लेकिन वह कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म अपने ही धर्म है ऐसा मानकर कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन वह नहीं होता है। यह अविद्या के कारण वह ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है, और यही दृष्टा की प्रत्ययानुपश्यता है। वह प्रत्यय के रूप में उसे उस प्रकार से देखता है, लेकिन यह उसका स्वभाव नहीं है। अज्ञान दोष के कारण यह अवस्था, यह प्रत्यानुपश्यता उसे प्राप्त होती है। और दृष्टा यह स्वभावता चेतन मात्र भी है और अपरिणामी ऐसा ही वह रहता है। दृश्य का किसी प्रकार से उस पर कोई परिणाम नहीं होता है, और दृश्य सतत परिवर्तनशील। दृश्य मतलब यह जगत, यह संसार, यह माया, यह जो बाह्य है, यह सारा कुछ नित्य परिवर्तनशील है, यह हम सब लोग जानते हैं। तो दृश्य यह सतत परिणाम को उपलब्ध होता रहता है। वह स्वतः के किसी प्रयोजन के लिए नहीं है, मतलब उस दृश्य के अपने प्रयोजन के लिए वह नहीं है। तो उसका जो स्वामी है दृश्य का, जो दृष्टा, उसके लिए उसका परिणाम होता है। परिणाम मतलब यहाँ पर वह क्रिया रूप धारण करता है, या दृश्य रूप धारण करता है, या अभिव्यक्त होता है, या है। यह कैसे, यह अगले सूत्र में बताया गया है। अगला सूत्र 21वां साधन पाद का, अर्थात पातंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद का, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। यह सूत्र छोटा सा ही सूत्र है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, तदर्थ उसके लिए, उसके प्रत्यर्थ क्या, तो दृश्यस्य आत्मा, यह दृश्य जो है यह उसी के लिए है। किसके लिए, तदर्थ, उसके अर्थ के लिए। किसका अर्थ, किसके लिए, तो दृष्टु के लिए। तो दृष्टि के लिए ही दृश्य है, ऐसा पतंजलि महामुनि यहाँ कहते हैं। अरे हम तो मानते हैं कि इस दृश्य में तो फंसना नहीं है, इससे तो हटना है, इससे तो अलग होना है, यह सब फंसाने वाला, अपने मोह जाल में हमें बांधने वाला, बंधन का कारक, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन पतंजलि महामुनि तो उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो दृश्य है, ये जो परिणाम सतत इसका रूपांतरित होना जो चल रहा है, यह दृष्टा के लिए है। जरा इस बात को देखते हैं। दृश्य का आत्मा यानी उसका जो स्वरूप है, वह तदर्थ यानी जो पिछले सूत्र में बताया है दृष्टा के लिए, उसी के लिए है।
दृष्टा के ही लिए है, दृष्टा के कारण ही वो है, दृष्टा के लिए ही है। अब ये कैसे? तो दृश्य का जो प्रयोजन है वह दृष्टा के लिए है। तो 18वें सूत्र में हम यह देख चुके हैं कि दृश्य यह दृष्टा के भोगापवर्गार्थ है, भोगार्थ और अपवर्गार्थ दोनों के लिए है। मतलब दोनों, मतलब उसका उपभोग लेना उसके लिए भी है और उपभोग के परे चले जाना मोक्षार्थता के लिए या अपवर्गार्थ के लिए है यह दृश्य, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। यानी क्या? यानी दृष्टा की भोगापवर्गार्थता यह दृश्य का प्रयोजन है, मतलब दृश्य निर्मिति का, मतलब इस जगत के निर्मिति का, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। और वो इससे स्पष्ट है, ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही अलिंगावस्था से लिंग मात्र की तरफ, जो कल हम देख चुके हैं, अविशेष से विशेष की तरफ यह परिणामभूत विकृति उत्पन्न होते रहती है। और इसका जो प्रयोजन है वह यह परिणाम विशेष के कारण दुख सुख आदि का भोग उसको देकर पर अंत में जीव को कैवल्य साक्षात्कार होना चाहिए, इसके लिए यह सारा कुछ उसका प्रयास है। किसका? तो इस दृश्य का, इस जगत मात्र का यह सारा प्रयास है। इससे यह शंका भी उत्पन्न होती है कि यह प्रकृति, यह जगत, यह दृश्य यदि दृष्टा के कुछ प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह परिणाम होता है, मतलब परिणाम के रूप में होता है, तो फिर यह परिणाम, इसका प्रयोजन यह उस है, उसका प्रयोजन है, ये धारण करता है, तो फिर इसकी प्रवृत्त होने वाली, तो फिर ये चेतन वस्तु होना चाहिए। बिना चेतनता के ये कैसे सोचेगा कि दृष्टा का कुछ लाभ होना चाहिए या दृष्टा को मोक्षार्थता की तरफ ले जाना चाहिए, मतलब वो भी चेतन है, ऐसा एक भ्रम हमें उत्पन्न हो सकता है। पतंजलि महामुनि वह भ्रम दूर करते हैं। वे कहते हैं कि प्रयोजन कोई धारण कर और परिणाम में रूपांतरित होना, प्रवृत्त होना, यह जड़ वस्तु का धर्म नहीं है, यह तो चेतन वस्तु का धर्म है। तो फिर ये जो दृश्य है जिसको हम जड़ कहते हैं या तामसिक कहते हैं, यह कैसे सोच सकता है कि इसमें दृष्टा का लाभ होना चाहिए या यह भोगार्थता की ओर से यह परमार्थ की तरफ या फिर यह अपवर्गार्थता की तरफ या मोक्षार्थता की तरफ यह जाना चाहिए, यह वह कैसे सोचेगा या वह कैसे कर सकता है? तो उसका तो यह धर्म है नहीं, क्योंकि चेतन धर्म है नहीं, वो जड़ है। इस शंका का निरसन इसी सूत्र में किया हुआ है। क्या कह रहे? दृश्य का आत्मा यानी दृश्य का शील, उसका स्वभाव और उसका प्रयोजन, यह सब दृष्टा के लिए ही है। मतलब दृष्टा का होना, उसका स्वभाव और उसका प्रयोजन, उसकी निर्मिति, यह सब दृष्टा के लिए ही है। तो जड़ वस्तु में यह कोई भी शक्ति नहीं रहती है कि जिसके कारण जड़ वस्तु स्वतः कोई प्रयोजन निर्मित कर सकते या साध सकती है। ऐसी कोई शक्ति जड़ वस्तु में नहीं होती है, अर्थात जो दृश्य है उसमें नहीं होती है। और उस कारण जब उसका स्वभाव चेतन नहीं है और वह प्रयोजन को उपलब्ध नहीं हो सकती है, साध नहीं सकती है, तो इसका एक आध उदाहरण जरा लेते हैं और इस बात को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। जैसे कोई वाद्य होता है, मान लीजिए कोई स्वर निकालने वाला वाद्य, मान लीजिए बांसुरी है, उसमें से आलाप भी निकलते हैं,
स्वर निकलता है, मधुर आलाप उसमें से पैदा होते हैं, ऐसी शक्ति उसमें है। लेकिन वह वाद्य उसमें समाहित जो शक्ति है, यह दोनों ही स्वभाव का जड़ है। वाद्य भी जड़ है और उसके अंदर से निकले हुए जो सुर है, चाहे बांसुरी हो, चाहे सितार हो, चाहे तबला हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे वायलिन हो, गिटार हो, और कोई वाद्य हो, तो उसमें जो आलाप निकलते हैं, मधुर स्वर, मधुर आलाप निकलते हैं, वे और वो वाद्य स्वयं, ये जड़ है, वह तो चेतन तो है नहीं। तो इन दोनों के से अलग यह स्वभावगत जड़ वस्तु होने के बावजूद इन दोनों से अलग ऐसा कोई चेतन पुरुष अपने मनोरंजन के लिए इन दोनों का उपयोग कर लेता है। भाई मुझे संगीत अच्छा लगता है, मुझे बांसुरी वादन या सितार अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसको बजाता हूँ अथवा सुनता हूँ। लेकिन वह जो सितार है वह और उससे निकलने वाले मधुर आलाप या सुर, यह सारे जड़ है, यह तो हम लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार दृश्य में स्थित जो भोगापवर्गार्थता रूप शक्ति है, वह यह ठीक है कि वह दृश्य में होती है, फिर भी वह दृष्टा के लिए है। जैसे बांसुरी के स्वर और बांसुरी यह सुनने वाले के लिए है, ठीक वैसा ही दृश्य में स्थापित यह जो स्थित यह जो शक्ति है भोगार्थता की और अपवर्गार्थता की, तो दृश्य भी और यह दोनों शक्तियां यह दृष्टा के ही लिए है। जैसे संगीतज्ञ के लिए, संगीतकार के लिए या अथवा सुनने वाले के लिए वह बांसुरी या वह वाद्य और उसमें से निकलने वाले सुर, मधुर आलाप, यह सुनने वाले के लिए होते हैं। ठीक वैसे ही यह दृश्यमान जगत यह दृष्टा के ही लिए है कि वह भोगार्थता की तरफ और अपवर्गार्थता की तरफ ले जाते हैं। उनमें अपने आप में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। तो यह समझने की बात है। इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि दृश्य का शील, दृश्य का स्वरूप, दृश्य का प्रयोजन आदि सब कुछ दृष्टा के लिए ही है। इसलिए संसार में यह जब प्रवृत्त होता है, कौन? दृष्टा अपने 16 प्रकार के जो कल बातें हुई थी, पंच महाभूत अर्थात क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच ज्ञानेन्द्रिय नाक, कान, आंखें, जिह्वा और त्वचा, पंच कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, जिह्वा, उपस्थ और पायु और अंतःकरण, यह 16, यह सारे 16 वहां पर काम करते हैं। और जो दृष्टा इसका दृश्य का शील, स्वरूप, प्रयोजन आदि सब कुछ जब दृष्टा के लिए होता है, तो वह संसार में प्रवृत्त जब होता है, तब दृश्य के भोगार्थता का वह इनके माध्यम से उपयोग कर लेता है। और जब यह संसार से निवृत्त होता है, मतलब इस बाह्य चीजों से, इन 16 बातों के माध्यम से जब वह उसमें जाता है तो भोगार्थता, और उसमें जब निवृत्त होता है तब वह अपवर्गार्थता की तरफ वह जाता है। तो निवृत्त होने की वह इच्छा रखता है और दृश्य में स्थित वह अपवर्गार्थता का उपयोग अपने मोक्ष स्थिति की तरफ जाने के लिए कर लेता है। मतलब इसमें निवृत्त होना चाहिए या इसमें प्रवृत्त होना चाहिए। वह प्रवृत्त होता है तो भोगार्थता, तो दृश्य उसको भोगार्थता की तरफ ले जाते हैं। जब वह निवृत्त होता है तो दृश्य होना जरूरी है। तो जब दृश्य होता है तभी वह निवृत्त हो सकता है,
और जब वह निवृत्त होता है इन 16 बातों के कारण, तब वह मोक्षार्थता की तरफ जाता है। इसलिए दृश्य का होना यह जरूरी है, अवश्यंभावी है, अत्यावश्यक है। इसलिए दृश्य यह हमारे लिए बंधन कारक है। ऐसा जो अभी तक हमारे अंदर भ्रम था, इस भ्रम को हम लोगों ने त्याग देना चाहिए। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या हम कहते आए हैं, तो यह जगन मिथ्या है इस अर्थ से कि वह असत्य नहीं है, वह है, वह उपस्थित है, लेकिन इसमें हमको रममान नहीं होना है, इसी में हमको लगना नहीं है। तो इसमें से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका निर्माता, वह चेतन तत्व, वह ब्रह्म, वह सत्य है, उसकी तरफ जाना है। यह बात सदैव अपने मन में जागरूक करना। और एक बात यहाँ पर स्पष्टीकरण स्वतः ही होता भी है और देते हैं कि दृश्य के स्थान में, दृश्य में जो भोगापवर्गार्थता सब प्रयोजन होने के लिए दृश्य का परिणाम प्रवाह भोगानुकूल और अपवर्गानुकूल होना चाहिए। भाई यह जो दृश्य है, यह कभी तो भोगानुकूल होता है, कभी अपवर्गानुकूल वह होता है। तो यह होना जरूरी है, तभी तो यह दो बातें साफ साफ अलग अलग दिखाई पड़ेगी। तब दृश्य का भोगापवर्गार्थता अर्थात भोगानुकूल वह होना, उसका स्वभाव होना, और अपवर्गानुकूल उसका स्वभाव होना। तो यह परिणाम प्रवाह कौन घटित करता है, किसके कारण यह लग रहा है? क्योंकि वह प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकता, उसमें खुद में कोई ऐसा चेतन तत्व तो है नहीं, वह तो जड़ है। वह कौन करता है? तो यह कौन कराता है? यह अनुकूल परिणाम प्रवाह, यह अपवर्गानुकूल भी कराता है, कभी भोगानुकूल भी कराता है। तो अनुकूल तत्व कौन देता है इसको? तो सर्वसृष्ट पदार्थों में परिणाम प्रवाह यह कहीं अल्प शक्तिमान और अल्प ज्ञानवान, ऐसी जो व्यष्टि स्वरूप दृष्टा जो होता है उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। दृष्टि का मतलब एक छोटी इकाई, तो मनुष्य देह एक छोटी इकाई है उस ब्रह्म की, उस परम शक्ति की, उस समष्टि की, ये छोटी इकाई है। और ये छोटी इकाई होने के कारण यह अल्प ज्ञानवान है, यह अल्प शक्तिवान भी है। तो अल्प शक्तिमान और अल्प ज्ञानवान ऐसी शक्ति उसको, मतलब इस दृश्य को अनुकूल ऐसा परिणाम प्रवाह में नहीं डाल सकती है, उसमें यह शक्ति नहीं है, तो उसके नियंत्रण में यह नहीं है। तो फिर यह प्रवाह कौन बनाता है? तो प्रकृति ही यह अनुकूल परिणाम यह बनाती है, करती है। ऐसा कहो तो फिर प्रकृति तो जड़ है, मतलब वह खुद नहीं कर सकता, मतलब जो दृष्टा के रूप में है, लेकिन वह अल्प शक्तिवान, अल्प ज्ञानवान है, क्योंकि समष्टि में के माध्यम से, समष्टि नहीं व्यष्टिगत स्वरूप में बंधा है, वह भी नहीं कर सकता। प्रकृति यह चेतन नहीं है, इसके कारण दृश्य स्वयं नहीं कर सकता, वह जड़ है। तो फिर करता कौन है? तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा सिद्ध होता है कि दृष्टा जीव भोगानुकूल अथवा अपवर्गानुकूल ऐसा यह परिणाम प्रवाह घटित करने का, बनाने का कार्य दृष्टा जीव अथवा जड़ प्रकृति, इन दोनों से अलग कोई ऐसा तत्व है कि वह करता होगा। और वह तत्व निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि वह सर्वज्ञ होना चाहिए, वह सर्वशक्तिमान होना चाहिए, वही कर सकता है। और ऐसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ऐसे तत्व को परमेश्वर ऐसा कहा जाता है, और यह परमेश्वर ही वह घटित करता है। इसलिए पहले पाद में
साधक को असंप्रज्ञात समाधि के लाभ द्वारा, वह लाभ कैसा होता है, तो ईश्वर प्रणिधान से होता है। और ईश्वर के में सर्वज्ञत्व है, ऐसा उन सूत्रों में बताया गया था। ईश्वर प्रणिधानाद्वा ऐसा भी कहा गया था। तस् तद जपत तदर्थम ऐसा भी कहा गया था। तो ईश्वर परमेश्वर ही सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और ईश्वर प्रणिधान से ही यह संभव हो सकता है। क्योंकि भोगापवर्गार्थता के लिए जड़ प्रकृति का अनुकूल परिणाम प्रवाह यह बनाने का कार्य केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकता है। ऐसा इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर पतंजलि महामुनि ने बताया। सीधी सीधी बात कि यह जो दृश्य जगत है यह चेतन नहीं है, दृष्टा चेतन है। और यह जो दृश्यमान जगत है यह दृष्टा की भलाई के लिए है कि उसको कभी तो संसार में जब ये लिप्त होता है अज्ञान अविद्या के कारण, तब यह भोगार्थता की तरफ जाता है। और जब वह उसमें से निकलता है, अविद्या का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, सत्वगुण संपन्न होता है, तो फिर यह दृष्टा धीरे 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 अपवर्गार्थता की तरफ जाता है। तो यह जो दृश्य जगत है यह उसको भोगार्थता की तरफ भी ले जा सकता है, लेकिन उसमें से वैराग्य भाव उत्पन्न होकर यह धीरे धीरे मोक्षार्थता की तरफ, अपवर्गार्थता की तरफ जाता है। इसलिए यह दृश्य जगत होना जरूरी है। लेकिन यह दृश्य जगत का गुण नहीं है कि दृष्टा को अपवर्गार्थता की तरफ ले जाए या भोगार्थता की तरफ ले जाए, क्योंकि वह चेतन नहीं है। यदि वह चेतन नहीं है तो फिर यह काम कौन करता है, तो यह काम दृष्टा ही करता है। लेकिन दृष्टा कर सकता है क्या, क्योंकि दृष्टा यह एक व्यष्टि में समाहित है, संपूर्ण समष्टि का वह छोटा सा अंश है। तो वह अपने आप में सर्वशक्तिमान नहीं है, वह अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है, तो वह यह काम नहीं कर सकता। तो उस जगत को भोगार्थता की तरफ और अपवर्गार्थता की तरफ ले जाने के लिए सक्षम कौन करता है, इस दृष्टा को ले जाने के लिए, तो वह परम शक्तिवान, वह सर्वत्र उपस्थित और वह सर्वज्ञ ऐसा जो ईश्वर है, परमात्मा तत्व है, वह करता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही यह करता है, ऐसा इस सूत्र में पतंजलि महामुनि ने सूचित किया है। इसलिए इसका तात्पर्य है कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीव के कल्याणार्थ सृष्ट पदार्थ में भोग और मोक्ष इनके अनुकूल ऐसा परिणाम प्रवाह वह घटित करता है, बनाता है। तब साधक ने इसको समझ लेना चाहिए। जो योग मार्ग में लगा हुआ है, जो मुमुक्षु है, इसने इस बात को समझकर ईश्वर शरण, ईश्वरैक शरण रहकर सर्व दृश्य जगत का कैवल्य प्राप्त्यर्थ उपयोग कर लेना चाहिए। जो दृश्य जगत है इसका कैवल्य प्राप्ति के लिए उपयोग कर, इनके विनाश का नहीं सोचना, इनसे अपने बुद्धि से यह नहीं सोचना ये अनुपयोगी है, यह बेकार है, मेरे मार्ग में बाधा है, ऐसा न समझकर उनका कैवल्य प्राप्त्यर्थ उपयोग कर लेना यही उचित है। ऐसी सद्भावना प्रत्येक साधक के मन में होनी चाहिए। और यह सारा जो जगत है यह परिवर्तनशील है। या आप सब जानते हैं कौन सी चीज परिवर्तनशील है? यह जो शरीर, यह अचेतन शरीर, अस्मिता अविद्या के कारण यह चेतन है, आत्मवान है, ऐसा लगता है, यह परिवर्तनशील है, ये सब हम जानते हैं। अभी इस पिछले क्षण जो था वैसा अभी नहीं है, क्योंकि बोलते बोलते मेरी झीझ हुई है, सुनते सुनते आपकी झीझ हुई है, घटा है, परिवर्तन हुआ है बाल्यकाल से, युवावस्था से, और धीरे 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 वृद्धावस्था, और अंत में उसका नाश हो जाता है, पंचभूतों में विलीन हो जाता है। सारे वृक्ष धीरे धीरे क्षण क्षण बढ़ते हैं,
पतझड़ होता है, पत्ते तना बढ़ता जाता है, कुछ समय के बाद कभी दीमक लगती है, कोई बीमारी, कभी आंधी तूफान आता है, नाश होता है। अरे आपके मकान, सारे मकान 30, 35, 40, 50 साल होने के बाद वो गिराए जाते हैं, दूसरे बनाए जाते हैं। अरे प्लानिंग अच्छी नहीं थी, अरे इसका रंग अच्छा नहीं था, अरे ये दीवार तोड़ के इधर ये करना चाहिए, अरे बाथरूम इधर के उधर करना चाहिए, अरे खिड़की इधर करनी चाहिए, दरवाजा इधर करना चाहिए। परिवर्तन, सड़कें फिर 2-4 साल बाद नई बिछानी पड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा लाइफ, दुनिया की बहुत अच्छी सड़क कितनी, तो 100 साल, फिर 100 साल के बाद क्या, दोबारा डालो। ऐसी जगत में कौन सी चीज है कि जो परमानेंट है? एक ही चीज है, वह परमात्मा परमेश्वर, बाकी सारा परिवर्तनशील है। तो यह दृश्य स्वयं परिवर्तनशील है, तो इस दृश्य के साथ कितना लगना, कितना उसको आत्मवान समझना, कितना उस पर भरोसा करना, कितना वही सत्य है मानना, कितना वही शुभ है, वही पवित्र है, वही मंगल है, ऐसा मानना। वो ऐसा न मानकर अरे इससे हटो, अरे सावधान हो जाओ, यह मोक्षार्थता है, अपवर्गार्थता है। यह मुमुक्षु साधक ने समझ लेना चाहिए। और इसीलिए दृश्य अथवा जगत अथवा प्रपंच अथवा माया की निर्मिति उस परम शक्ति द्वारा की गई है। मुझे लगता है हम लोगों ने इस बात को पकड़ लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे तो आज बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा प्रकाश हुआ है अंदर कि इन सब बातों की जो हम उपेक्षा करते हैं वह नहीं करनी चाहिए, और इनके प्रति सत्कार भाव, इनके प्रति खुशी का भाव, इनके प्रति आदर भाव हम सबके मन में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अरे इन्हीं ने मुझे भोगार्थता की तरफ ले गया, और इन्हीं ने मेरे अंदर ज्ञान पैदा किया कि इस भोगार्थता में लिप्त मत हो, इससे हटो और अपवर्गार्थता की तरफ चले जाओ। ऐसे बनने के ये साधन बने, इनके उपकार है मुझ पर, ऐसा भाव हमें से प्रत्येक के मन में आना चाहिए। यदि ऐसा आता है, आप समझना कि साधना मार्ग में हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। मुझे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता यह बात पढ़ते हुए और यह बात आपके सम्मुख रखते हुए हो रही है। मुझे लगता है मैं तो स्वयं हर्षित हो रहा हूँ, रोमहर्षित हो रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे चलकर पतंजलि महामुनि कहते हैं, यह सारे दृश्य भोगापवर्गार्थ है, तो दृष्टा जीव को अपवर्ग प्राप्ति होने पर वह दृश्य कृतकार्य हो जाते हैं। मतलब यह जगत कृतकार्य हो गया कि मैंने दृष्टा को अपवर्ग की तरफ मैंने पहुंचा दिया, तो इसके जीवन की सार्थकता हो गई, उस दृश्यों की, उस जगत की वस्तुओं की। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। और इसलिए वह बाद में परिणाम शून्य हो जाते हैं कि उन्होंने भोगार्थता मिटा दी और अपवर्गता की तरफ साधक को पहुंचा दिया, उसमें धकेल दिया। उसने उसको छलांग लगाने के लिए उसकी प्रवृत्ति बढ़ा दी और उसके लिए वैसी स्थिति बना दी कि वह छलांग लगा दे और वह भोगार्थता की ओर, मोक्षार्थता की तरफ अथवा मोक्ष स्थिति की तरफ चला जाए। यह मोक्ष अवस्था मिलते ही जीव को दृश्य जात परिणाम शून्य हो जाते हैं, और इन सब का प्रविलय होना चाहिए। प्रविलय का मतलब हो जाना चाहिए वापसी इन सब दृश्यों की। लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष तो होता नहीं है। भाई पेड़ है तो है, सड़क है तो है, बाल्टी है तो है, कुर्सी है तो है, ये तो सारी की सारी वैसी ही रहती है। भले हम भोगार्थता की तरफ से उठकर मोक्षार्थता की तरफ जाए, लेकिन वस्तु है, जगत के दृश्य सारे वैसे ही रहते हैं। इनका स्पष्टीकरण अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि देते हैं। वे कहते हैं, 22वां सूत्र है, कृतार्थम प्रति नष्टमप्यष्ट नष्टम, प्रति नष्टमप्यष्ट नष्टम
तदन्य साधारणत्वात् कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य तद अन्य साधारणत्वात्। तो कैवल्य साक्षात्कार होने के कारण कृतार्थ हो गए, अर्थात योगी जनों के लिए या जो साधक है उनके लिए यह दृश्य मान लो या नष्ट भी हुआ, दृश्य नष्ट नहीं होता है, लेकिन साधक का उनके प्रति देखने का भाव बदल जाने के कारण वह एक नष्ट अवस्था में ही वह है, ऐसा समझना चाहिए। वह तद अन्य यानी उस साधक से हटकर अलग लोग जो होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, क्या उनके लिए मतलब जो जीव अकृतार्थ, यह प्राप्त मोक्ष अवस्था प्राप्त होने के जरूर जो कृतार्थ हुए, उनके सिवा अकृतार्थ जीव भी है जिनको वह अवस्था मोक्ष अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। उन जीवों को भी साधारण रूप में, उन जीवों को साधारण रूप से यह दृश्य प्रतीत होते रहते हैं, इसलिए उनके लिए यह अनष्ट ही है। किनके लिए? जो योगी है, जो मोक्ष स्थिति में पहुंचे हैं, उनको तो यह नष्ट हुए। क्या? दृश्य के माध्यम से जो वस्तुएं आदि की उपस्थिति है वह नहीं के बराबर है, लेकिन जो अन्य जीव है उनके लिए तो वह नष्ट नहीं हुए, इसलिए वह अनष्ट है, वह है, अभी है। तो दृश्य का जो परिणाम प्रवाह है वह अकृतार्थ जीवों के लिए ही है। जो कैवल्य साक्षात्कार होने के बाद योगी तो कृतार्थ होता है, लेकिन जो कृतार्थ योगी है उसको दृश्य के कोई प्रयोजन अविशेष नहीं रहते हैं। तो फिर अलिंगावस्था में त्रिगुणों के लिंग मात्र अवशेष विशेष ऐसे जो परिणामावस्था होने का जो कारण नहीं रहता है, और इस कारण वह निष्प्रयोजनत्व के कारण महत पंच तन्मात्रा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय स्थूल महाभूते जो 16 बातें बताई इत्यादि के जो परिणाम हुए वह उसके लिए रुक जाते हैं। वह रुकने के कारण अनायास ही मतलब बिना प्रयास के भी वह जीवों का सब संसार समाप्त हुआ है या उससे मुक्त हुआ है ऐसा वह समझता है। लेकिन प्रत्यक्ष में अनुभव तो ऐसा कभी नहीं आता कि अनेक जीव तो कृतार्थ हुए, मोक्ष स्थिति में वह पहुंचे, या त्रिगुणों का परिणाम प्रभाव उनके लिए रुक गया ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में तो दिखाई पड़ता है। तो यह प्रयोजन खत्म हुआ ऐसा उनके लिए है, तब भी वास्तव में ऐसा खत्म हुआ परिणाम प्रभाव उन दृश्यों का ऐसा तो दिखता नहीं है। तो वह यदि रुकता नहीं है तो उसका प्रयोजन अभी शेष है, क्योंकि यह दृश्य यह जगत की सारी चीजें वैसे दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि उनका प्रयोजन अभी बाकी है, उनकी उपयोगिता अभी बाकी है, क्योंकि योगी के लिए तो वह उसमें से बाहर होने से वह समाप्त हुए, लेकिन बाकी लोगों के लिए उनके लिए तो है, क्योंकि वह चीजें तो बदलती नहीं, चीजें तो वैसी रहती है। तो इस कारण वह दृष्टा के लिए तो वह कृतार्थ हो गया, तो यह तो मानना पड़ता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वह अभी शेष है। इस दृष्टि से थोड़ा सा 2-4 मिनट का विचार आगे करते हैं। निर्विकल्प समाधि में आत्म साक्षात्कार होने के कारण अविद्या का नाश हुआ रहता है, तो वह जीव कृतार्थ हो जाते हैं कि जिनको वहां पर आत्म साक्षात्कार हुआ अथवा निर्विकल्प समाधि की अवस्था अविद्या का नाश होने से हुई, तो वे तो वहां पर कृतार्थ हो गए।
लेकिन अविद्या का नाश होने के कारण उनका जो अविद्या मूलक यह सारा संसार है वह भी नष्ट हुआ रहता है ना। लेकिन जिन जीवों का अविद्या का नाश नहीं हुआ है उनका तो संसार ये तो चलता ही रहता है। यह दृश्य और जगत के सारे व्यवहार सारी बातें ये तो दिखाई पड़ती है और होते ही रहती है और वह उसको सत्य भी मानता है। जैसे रस्सी पर सर्प है ऐसी जो भ्रांति होती है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यह भ्रांति नष्ट हो जाती है। अरे नहीं नहीं ये सर्प नहीं है ये तो रस्सी है, तो उनकी भ्रांति का नाश हो गया, नष्ट हो गई भ्रांति। तो उनके लिए वह सर्प नष्ट हुआ, लेकिन उसका जो मूलक है क्या तो रस्सी, उसके कारण क्या होता है वह रस्सी होकर, रस्सी तो है लेकिन वह सर्प जैसी दिख रही थी, उसके कारण भय कंपन होते हैं, डर लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है, पसीना छूटता है, आंखें फटा फटा कर वो देखता है फाड़ फाड़ कर, कान वही सुनते हैं, हाथ पैर में कंपन, भागने की इच्छा होती है। यह सब जो है उसमें घटित होता है। और जिसको यह समझ में आता है यह भ्रांति है, यह तो सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी है, तो जिनकी यह सर्प भ्रांति नष्ट होती है उनको इसमें से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह भ्रांतिकृत सर्प जो है वह तन्मूलक भय कंपादि वह सारा कुछ वह खत्म हो जाता है और उस कारण वह होते नहीं है। तो जिनको यह भ्रांति रहती है उनको यह होता है, जिनकी यह भ्रांति नष्ट होती है उनको उसका जो परिणाम है वह नहीं होता है। इसलिए यथार्थ जीवों का अविद्या भ्रम नष्ट हो गया होने के कारण यह सारा कुछ सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह ब्रह्म का ही रूप है ऐसा उनको लगता रहता है और उसकी प्रतीति उनको सदैव आती रहती है। लेकिन जो जीव अकृतार्थ है, अभी उनको मोक्ष प्राप्ति या समाधि अवस्था या अपवर्गता प्राप्त नहीं हुई है, वह अविद्या मूलक सौर संसार में वह यथा पूर्व वह चालू ही रहते हैं और उसी में वे लगे रहते हैं। दृश्य जगत, यह दृश्य जगत यह एक प्रकार का नाटक है, समझ लो इस बात को। यह दृश्य जगत यह एक प्रकार का नाटक है, क्योंकि जो अकृतार्थ जीव है इन्होंने कैसे समझना चाहिए इसके लिए यह उदाहरण आ सकता है। यह दृश्य जगत एक प्रकार का नाटक है और ईश्वर इस जगन नाटक का सूत्रधार है। यह जो नाटक हो रहा है जिसमें हम आप सभी लोग इसमें नट के रूप में काम कर रहे हैं, इसके पात्र है, एक्टर है, तो इसका सूत्रधार कौन है? तो इस जगन नाटक का सूत्रधार ईश्वर है और वही इस नाटक में किसकी क्या भूमिका है वह तय करता है। और यह भूमिका अलग अलग नट अलग अलग प्रकार से निभाता है, करता है। इसलिए इस नाटक की जो जिन लोगों को इस नाटक का इन कृत्रिम सुख दुखों का इनको ऊब हो जाती है, वह इस नाटक से निवृत्त हो जाते हैं, इस नाटक से हट जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जब तक केवल प्रेक्षक इस भूमिका में रहकर इस जगन नाटक को देखते हैं, तब तक यह जीव मुक्तावस्था का अनुभव वह ले सकता है। जो निवृत्त होते हैं, जिनको इसकी उबक आती है, वह
केवल प्रेक्षक इस भूमिका में जब तक रहते हैं तब तक ही इस जगन नाटक का जीवन मुक्तावस्था में रहकर वह अनुभव ले सकते। लेकिन जब वे प्रत्यक्ष नट बनते हैं, एक्ट करने वाले बनते हैं अथवा प्रेक्षक बनते हैं, मतलब वह दृश्य भी देखते हैं, इस नाटक को देखते भी है, जगन नाटक जो ईश्वर ने निर्मित किया है उसको देखते हैं या प्रत्यक्ष उसमें भूमिका निभाते हैं नट के रूप में, तो इन दोनों भूमिकाओं में जब वे रहते हैं तब वह उसका भोग उनको लेना पड़ता है। इस दृष्टि से उनको फिर उसका जो अनुभव है वह लेना पड़ता है और वह सामान्य जीव उसमें वह करते रहते हैं। और इसलिए उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो ईश्वर ने यह जगन नाटक रचा है तो मैं इससे या तो हट जाऊं या इसका केवल प्रेक्षक बनकर इस जगन नाटक की तरफ मैं देखूं तो ही वह इसमें से वह हट सकते हैं। इस दृष्टि से यह जगन नाटक अपने आप में वह अनष्टक ही है। वह जगन नाटक इसमें से हटना यह जरूरी है, या तो वह प्रेक्षक बनकर दूर से देखे या इसकी ऊब हो जाए और उसमें से हट जाए। इसीलिए यह दृश्य, यह जगत वैसा ही चलता रहता है। तो यह सीख इससे हमको मिलती है। फिर अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं, अगले सूत्र में दृष्टा और दृश्य इनके संयोग का प्रयोजन क्या है। क्योंकि पहले दृष्टा दृश्य की संयोग यही बताया गया है। फिर दृष्टा क्या है, फिर दृश्य क्या है, फिर दृश्य क्यों पैदा हुआ है, फिर वह कैसे मोक्ष की तरफ ले जाता है, यह पतंजलि महामुनि ने बताया है। और फिर इसके संयोग का क्या प्रयोजन है दृष्टा और दृश्य का, यह अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं। उसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। यहाँ पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यह सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार। तो 4 मिनट के लिए शांति से बैठ जाते हैं। कृपया अपने आप को ढीला ढाला कर ले। जैसे नींद में हम एक ही करवट पर सोए रहते हैं, फिर भी हमको तकलीफ नहीं होती है, और हम सहज रूप से कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद करवट बदल लेते हैं अथवा पीठ के बल हो जाते हैं। ठीक वैसा ही थोड़ी देर के लिए बिल्कुल निश्चेष्ट होकर, शरीर को एकदम ढीला ढाला छोड़कर बिल्कुल शिथिल, तनाव रहित हो जाए। मन से भी एकदम शांत हो जाए। और आज के ही सूत्र पर थोड़ा विचार करें। कितना अच्छा सूत्र पतंजलि महामुनि ने दिया है। यह दृश्य जगत कर लो, इसका उपयोग कर लो। या तो यह आपको भोगार्थता की तरफ ले जा रहा है, अथवा निवृत्ति पथ पर जाकर अपवर्गार्थता की तरफ लेकर चले जाओ।
इसके लिए इसका उपयोग कर लो। वह अपने आप में यह सब नहीं कर सकता है, तो दृष्टा बस केवल देखना, इस जगन नाटक का मात्र दृष्टा, मात्र प्रेक्षक, बस इसमें प्रत्यक्ष कृति करने वाला न होकर प्रेक्षा भाव से, दृष्टा भाव से इस जगन नाटक को देखना भर। यह देखने से ही अपवर्गार्थता आ सकती है, इसलिए इसकी उपस्थिति का सत्कार, आदर भाव अपने हृदय को विशाल कर ली। इस दृश्य जगत की भी सार्थकता होने दें, उनके होने का कुछ अर्थ होने दें। ऐसा मंगल भाव अपने अंतःकरण में रहने दें। उनका उपकार, उनकी कृपा स्वीकार करें। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता मन में रखिए। ओम शांति शांति शांति। यह सत्र यहीं
समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।